Hello everyone, so today we are going to start 12th class physics. So in this video we are going to see what are the things which we are going to study in 12th class. So let's begin. So before starting, let's understand this thing that physics is divided into two parts. Actually very few people, few students know about this, that physics is also divided into two parts. So that is classical physics and quantum physics. Likewise, we know that chemistry is divided into three parts, that is physical chemistry, organic and inorganic. So similarly, physics is also divided into two parts, that is classical and quantum physics. So in this video we are going to see what these two things are and what are dissimilarities and similarities between them. So let's see. So before that, physics is actually the study of motion of an object. In 11th class, we have seen various things that which is related to the motion of object, that is velocity, acceleration, force. So let's see what is classical physics and what is quantum physics. In 11th class, everything which we have studied that undergoes in classical physics, and in 12th class we are going to study quantum physics. So let's see what we have studied. In 11th class हमने देखा था कि हमने उस ऑब्जेक्ट की मोशन की स्टडी करी. जैसे कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, लेट्स इमेजिन दिस इज एन ऑब्जेक्ट एंड इज गोइंग इन द एनी डायरेक्शन, सपोज x direction. We have studied that motion of an object in two dimension in 11th class, 1D motion and 2D motion. There are actually 3 dimension, but in 11th class and 12th class there are only 2 motion which we have to study. Suppose this is an object and moving in particular direction. There are many things which are related to this object and which we have learned in 11th class. So let's recollect it from 11th class what we have studied. So object is moving in a particular direction, so there would be a velocity related to it. If there is a velocity, there may be an acceleration. And so these two things which the first chapter was kinematics in 11th class. So these two things which we studied in 11th class. फिर इसके बाद हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट है तो उसका पर्टिकुलर कुछ मास भी होगा उसके रिलेटेड. सपोज देयर वुड बी ए मास. आफ्टर दैट मास एंड एक्सेलरेशन आर देयर. फिर उसके बाद 11th में काइनेमेटिक्स के बाद हमें फोर्स आ गया था कि ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो there would be acceleration. If acceleration is there, there must be something which is creating that acceleration, that is force. फिर फोर्स के बाद अपना NLM आ गया था. NLM ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था 11th क्लास का, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. तो 3 लॉज थे, पढ़े थे हमने 11th क्लास में. तो मैनी प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, ब्लॉक प्रॉब्लम, पुली प्रॉब्लम्स थी, फ्रिक्शन वगैरह आ गए थे. फिर LLM के बाद आई थी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आई थी, वो थी वर्क एंड एनर्जी. वर्क एंड एनर्जी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था 11th क्लास का. ये बाद में भी है, 11th क्लास के बाद में भी है. जो ग्रेजुएशन में पढ़ोगे वर्क एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. So basically in 11th class we have only seen 2 or 3 types of energy related to the object. If object is having particular velocity, certain velocity, we say it as a kinetic energy. If object attains some particular height, we call it as potential energy. फिर हमने heat energy also देखा था इससे related. फिर इसके बाद इसका momentum भी होता है. ऑब्जेक्ट अगर मूव हो रहा है तो फिर उसके related momentum भी हो सकता है. फिर इसके बाद सर्कुलर मोशन, अगर सर्कुलर मोशन में हो रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, ये सब चीज़ें हमने देखी थी. रोटेशनल मोशन देखा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिलेटेड टू इट, जिसमें मास का काम जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है. ये सब हमने रोटेशनल डायनेमिक्स में देखा था, रोटेशनल मोशन में. तो ये जो ओवरऑल हमने जो भी चीज़ देखी थी 11th क्लास में, हमने सिर्फ इस ऑब्जेक्ट की मोशन की स्टडी करी है. तो ये जो भी चीज़ थी हमने देखा था, ये सब इसमें आती है क्लासिकल फिजिक्स में, मोशन, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. क्वांटम फिजिक्स भी ये होता है सिमिलरली. क्वांटम फिजिक्स भी है ना, देखा जाए तो मोशन ऑफ स्टडी होता है ऑब्जेक्ट की. बस हल्का सा अंतर होता है इतना सा कि जो ऑब्जेक्ट होता है क्वांटम फिजिक्स के अंदर वो पार्टिकल साइज का, तो हम उसे अपनी नेकेड आइज से देख नहीं सकते, बहुत छोटा होता है. जैसे कि हमने देखा होगा क्लासिकल फिजिक्स में जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट थे, वो कार होगी, ऑब्जेक्ट बॉल होगी, स्टोन होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह, सब जितने भी फ्लूइड मैकेनिक्स सब देखा था. हमारे जो ऑब्जेक्ट थे हम उसे विजिबल आइज से देख सकते थे. जो भी चीज़ें हो रही, फोर्स लग रहा है, ब्लॉक पे फ्रिक्शन है, सब विजुअलाइज कर सकते थे.
लेकिन क्वांटम फिजिक्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि पार्टिकल एटॉमिक साइज का होता है। एटॉमिक जब एटम्स की जब मोशन की स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार से किस तरीके से मोशन कर रहे हैं, ये सब स्टडी करते हैं, सब क्वांटम फिजिक्स में आता है। तो इसमें थोड़ा सा समझना, इसको विजुअलाइज करना थोड़ा सा दिक्कत आती है, तो एक ड्रॉबैक है, इसका डिफिकल्टी रहती है समझने में। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्वांटम फिजिक्स इसके कंपेरेटिवली तो देखा जाए तो, क्योंकि बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को मिलती है इसमें, बहुत सारे मैजिक्स होते हैं जो हम बिलीव नहीं कर सकते कि ऐसा भी बिहेवियर होता है एटम्स का। तो ये सब क्वांटम फिजिक्स के अंदर ही आता है। अधिकतर जितनी भी हमारे आसपास जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सब दूर क्वांटम फिजिक्स एप्लीकेबल, हर जगह क्वांटम फिजिक्स है। तो बहुत बड़ी ब्रांच है साइंस की है, तो इसको स्टडी करेंगे 12th क्लास के ना। तो अधिकतर बोलते हैं कि 12th क्लास के एंड में रहता है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स की बेसिक जो होती है वो स्टार्टिंग हो जाती है, स्टार्टिंग 12th क्लास में रहती है, और मेन चीज़ें अधिकतर है एंड से स्टार्ट होती है, मेन चीज़ें क्वांटम फिजिक्स की। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि क्लासिकल फिजिक्स में अगर हमें ऑब्जेक्ट की इनिशियल चीज़ें पता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब पता है, तो मैं इसका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि फ्यूचर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद ये ऑब्जेक्ट जो होगा कहाँ पे होगा। लेकिन क्वांटम फिजिक्स में ऐसा नहीं होता। अगर मुझे इनिशियल चीज़ें पता है तो मैं इसकी फाइनल लोकेशन, पोजीशन एग्जैक्टली पता नहीं कर सकता, बस मैं उसकी प्रोबेबिलिटी बता सकता हूँ। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अगर देखा हो, 11th क्लास में देखा होगा तुम लोगों ने, है ना। तो बेसिक चीज़ें थी प्रोबेबिलिटी बताना, ये सब 11th क्लास में देखा होगा केमिस्ट्री के अंदर, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो बेसिकली ये देखा जाए तो ये सब बाद में आएगा, 12th के बाद की चीज़ें हैं। पर ओवरऑल मेरे ख्याल से पॉइंट जो चीज़ें समझ में आ गई होगी क्वांटम फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स में क्या अंतर है। क्लासिकल फिजिक्स को न्यूटोनियन फिजिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी लॉज लग रहे हैं, ये सब न्यूटन के ऊपर ही लगे। न्यूटोनियन फिजिक्स, जितने भी कंसेप्ट हैं, फोर्स, एक्सेलरेशन, स्टार्टिंग में न्यूटन से हुई थी, एंड में न्यूटन पे हुआ, तो इसको न्यूटोनियन फिजिक्स ही बोलते हैं। अधिकतर ग्रेविटेशन, जो भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो न्यूटन के लॉस के अंडर ही वर्क करता है। वो अगर फोर्स लग रहा है इधर, तो वो ऑब्जेक्ट को उसी के रिएक्शन में काम करना पड़ता है, तो न्यूटोनियन फिजिक्स भी बोलते हैं। लेकिन क्वांटम फिजिक्स में जब स्टडी करते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट की, वहाँ पे न्यूटोनियन फिजिक्स काम करना बंद कर जाती है। तो यही दिक्कत है क्वांटम फिजिक्स की, वहाँ पे सब चीज़ें हैं अलग अलग, अपने अपने लॉस के अकॉर्डिंग काम करती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्वांटम फिजिक्स, 11th 12th क्लास में पढ़ेंगे हम। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड क्वांटम फिजिक्स। सो फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12th, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो थैंक यू।